ناظرین عوام کی رائے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر نوید، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں یہاں کی مشہور اور معروف ہستی کے ساتھ، جن کا نام ہے سیتل داس صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں GM فوڈ انڈسٹری کے، اور ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت جو انڈسٹری کے مسائل ہیں ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ خاص طور پہ ذمہ دارہ کے حوالے سے بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، کہ اسٹاک وغیرہ سارا جو بھی ہے وہ ذمہ دارہ سے یہ لوگ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ ایکسپورٹر کے حوالے سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، ٹیکسز کے حوالے سے، یہ سارے جتنے بھی یہ لوکل مسائل ہیں جن کو یہ فیس کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ بیٹھ کے، اگر ہماری حکومتیں، حکومت پاکستان، حکومت سندھ، ان مسائل کو دور کریں، ہماری انڈسٹری کو پرموٹ کریں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کی جو اس وقت گری ہوئی معاشی حالت ہے وہ بہتر طریقے سے سدھر سکتی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سیتل داس صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں اللہ کا کرم ہے سر؟ سائیں، بڑے خوش عرصے ہو۔ سے آپ یہاں پہ انڈسٹری میں ورک آؤٹ کر رہے ہیں، ماشاء اللہ آپ کو بہت زیادہ یہاں کا ایکسپیرینس ہے۔ اس وقت موجودہ سچویشن جو ہمارے ملک کی چل رہی ہے اور خاص طور پہ یہاں انڈسٹری کی چل رہی ہے، آپ کو کن مسائل سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے، تاکہ ہم حکومت کو دکھا سکیں کہ اگر ان مسائل کو ٹھیک کریں تو ہماری انڈسٹری پرموٹ ہو سکتی ہے، ہماری ایکسپورٹ پرموٹ ہو سکتی ہے، اور ہماری ملک کی جو معاشی حالت ہے وہ سدھر سکتی ہے؟ سائیں ابھی تو کیا بتائیں، ابھی آپ نے سوال سارے اکٹھے پوچھ لیے مجھ سے، ٹھیک ہے ایک نا؟ دفعہ ہی پوچھنا تھا نا ہاں، جی بس۔ مسائل ہی مسائل ہے، انبار مسائل کے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بزنس کرنا مشکل ہو گیا ہے، بزنس بھی کرنا مشکل ہو گیا ہے، نیچے لوگوں کی پوزیشن دیکھتے ہیں اس پہ بھی ترس آ رہا ہے۔ ہم اپنے کو تو ویسے ہی یہ جو سال، جو ایک دو سال گزر رہے ہیں، بالکل ایسے گزر رہے ہیں۔ ایک منٹ، فون آ رہا ہے تو اس کو روک لیتے ہیں، سن لیں آپ، امپورٹنٹ۔ بالکل مسائل تو بہت ہے، بس کتنے مسائل آپ کو بتائیں۔ یہاں تو پہلا ایشو ہے یہاں کا لائٹ کا، لائٹ ہے نہیں، انڈسٹری کیسے چلے گی؟ 14 سے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا انبار ہے بزنس کا، موئسچر آ رہا ہے پیڈی میں، وہ دیکھو ایک فیکٹری کا ایشو ہے، ایکسپورٹر کا ایشو ہے، ہم اس لیول پہ بھی نہیں جا رہے، ایک بزنس کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نیچے سے لیتے ہیں، ہمیں فیکٹری چلانی کس طریقے، جو چلانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہی ہمیں میسر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ذمہ دار ہے، میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں، مجھے لوگوں نے بتایا، آپ جیسی کمیونٹی کے لوگوں نے جو یہاں بزنس کر رہی ہے، کہ جو ذمہ دار جب ہم لوگ کاٹتے ہیں تو وہ اس میں آپس میں خاصا جو ہے نا جھگڑا سا، تو تمہیں ایسی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اوپر ایکسپورٹر کو بھیجتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح ہمارے ساتھ بھی معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اچھا جو ذمہ دار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سکھا کے اس کو لے کے آئے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر وزن بھی پورا ہوگا، جب ہم رکھتے ہیں تو ہمارے وزن میں بھی کمی شمی ہو جاتی ہے۔ وہ بالکل ایک بات آپ کی صحیح ہے، زمیندار سے چک چک چلتی ہے موئسچر کے حساب سے، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو پیڈی کا ریٹ بہت اوپر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کرے اور بھی اوپر جائے، ٹھیک ہے نا؟ زمیندار خوش ہوگا تو ہم بھی خوش ہوں گے۔ ہمیں پہلے موٹیویٹ زمیندار کو یہی کرنا ہے کہ اس موئسچر کو کنٹرول کرو، صاف دو صاف لو، ہمیں بھی آگے صاف دینا ہے، صاف لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم یہاں سے موئسچر کا مال بیچتے ہیں تو ایکسپورٹر ہمارا کارڈ لیتا ہے، وہ ہم سے نہیں پوچھتا ہے، وہ ایک اپنی رپورٹ لگا کے بیچ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ بھی پہلے جو تھا ایسے ہم موئسچر چیک کرتے تھے، ابھی موئسچر مشینیں آ گئی ہے، اس پہ چیک ہوتا ہے، کوئی گروس مطمئن ہو جاتا ہے اسی ٹائم میں موئسچر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے چل کے یہ مشین پہلے ایکسپورٹر کے پاس آئی ہے، ابھی ہمارے پاس آئی ہے، انشاءاللہ اگلے سال زمیندار خود لے کے اپنے پاس رکھے گا، وہ وہاں سے اس کو چیک کر کے بھیجے گا تو وہ اس میں چک چک ختم ہو جائے گی، پیریڈ وائز یہ کام سیدھے ہوتے رہیں گے، انشاءاللہ۔ ہاں، جیسے ہم موٹیویٹ ہوئے ہیں، زمیندار بھی موٹیویٹ ہوگا آگے چل کے، ٹھیک ہے نا؟ باقی رہا زمیندار زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک سنگ ہے نا، اس میں 100 دانے ہوتے ہیں، ہاں ہاں، وہ نکلتا ہے تو وہ ایک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہم اس کو بیچتے ہیں نا تو ہم 100 کٹ کر کے ایک بیچتے ہیں، تو لازمی یہ ہمارا ہی کام ہے، جو اتنے لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کرنا، ان کو سمجھانا، ٹھیک ہے نا؟ آہستہ آہستہ پیریڈ وائز چیزیں ہوں گی۔ یہ حالات جو بزنس کے ہے، لائٹ کے ایشو ہے، ٹیکس کے ایشو ہے، یہاں جو 16 ادارے بزنس مین کمیونٹی کے پیچھے لگا لیے ہیں، کوئی لیبر ہے، کوئی ٹاؤن والا ہے، جس کی بھی انگلی اوپر ہوتی ہے وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، 2000 دو، 4000 دو، یہ سسٹم تھوڑا عجیب ایک سا دن بدن خراب ہو رہا ہے۔ ہم وہ چیزیں سمجھیں کہ یہ چیزیں کنٹرول ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟
अपने जो हमारे हुकाम है, जो सिंध गवर्नमेंट है या वफाकी इदारे हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल करें। वैसे भी लोग बहुत परेशान हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी परेशान है, ग्रोअर्स भी परेशान है, तो खुदारा इनको तंग नहीं करे हैं। और इस मुल्क के लिए सोचें हैं, जो हमने अपने लिए सोचना था हमने सोच लिया, जो करना था कर लिया, ठीक है ना। इस मुल्क के लिए सोचें, इसमें वो अब आखिरी लेवल पे चल रही है चीज़ें सारी। हाँ, लोग बागी हो जाएंगे, लोग एक दूसरे के गिरेबान पे हाथ डालेंगे, इदारों का जो डप और डर है ना वो निकल जाएगा लोगों से। वो तो निकल गया हाँ, सर, खत्म तो है हो ना, गया वो। वो ख़त्म हो जाएगा। पहले यहाँ पुलिस की गाड़ी आती थी, हमें डर लगता था, ये पुलिस की गाड़ी क्यों यहाँ आई है। हैं, वापडा का एसी आता था, यार पता नहीं अल्लाह खैर करे ये क्यों आया है। तो डर, अब हम यही सोचते हैं ये बेंचों आएंगे हमें 500 हज़ार 5,000 लेने के लिए, और उनका क्या काम है। वो चीज़ें ख़त्म करो, कुछ एक लोगों में कुछ डर सी पोजीशन हो, और वो आप लोग कर सकते हैं, ये इदारे कर सकते हैं। इदारे खुद ऐसे हो जाएंगे तो फिर नामुमकिन है, हैं? ऐसा कोई बीज पोछो कि ये दिमाग लोगों के फ्रेश हो जाए, एक नई नस्ल को ऐसा हम गाइड करें कि डर की पोजीशन हो, काम की पोजीशन हो, लोगों को काम करने दो, अल्लाह खैर करे बस, और क्या कर अब तो आने सकेंगे। वाली जो नस्लें हैं ना वो शॉर्टकट ढूंढती है बस, कि शॉर्टकट हो तो हम रातों रात हाँ, जो है ना वो अमीर अमीर हो। हो जाएं, बस ठीक है मैं ना, यही कह रहा स्ट्रगल। हूँ कि कुछ ऐसा करो कि लोगों के लोगों को पैसे कमाने के लिए कट मार रहे हैं हर जगह से। हाँ, वो कट वाली पोजीशन निकालो, उनको मेहनत, जुस्तजू, एजुकेशन, ऐसी चीजें दो, वो खुद फूले फले और बड़े हो। वो अब उनका ध्यान स्ट्रगल की तरफ नहीं है। ठीक है ना, वो तो कहते हैं कि यार किसी तरीके से यार कोई सट्टा मार ले, हैं, कोई बिटकॉइन कोड ले, हैं, तो ये चीज़ें बस। अब खैर करेगा, वही बिजनेस के हालात आप देख रहे हो सर, लोड शेडिंग ज़्यादा है, इदारे बिल्कुल तंग कर रहे हैं। आगे इंडस्ट्री के मामले हैं, चलो एक्सपोर्टर एक राइस मिलर का अलग मामला है, ठीक है। जी सर, अमन अमान, अभी हालात ख़राब हो रहे हैं, स्नैपचैटिंग, बैंकों से डकैतियाँ, डर की पोजीशन, कराची के हालात भी आप देख रहे हो, लारी जो स्टेट क्राइम में बहुत इजाफा हुआ है, को कंट्रोल करना चाहिए। वो तो सर हुकूमत हमारा का सबसे बड़ा इशू है महंगाई और बेरोजगारी। जब तक ये हम बस महंगाई और यही बेरोजगारी। यही सर, मैं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों की वजह से ये चीज़ें बढ़ रही है ना। तो उन चीज़ों को इधर ही कंट्रोल करेंगे तो ये चीज़ें कुछ कंट्रोल होगी, ठीक है ना। महंगाई को कंट्रोल करे, हुकूमत लोगों को रिलीफ दे, गरीब लोगों को रिलीफ दे, ऐसा कोई मैकेनिज्म लाएं कि जो नीचे वाले लोग हैं उनको रिलीफ मिले। उनमें बगावत आ गई तो फिर हम जैसे लोग भी नहीं रह सकेंगे, हमारे जो बड़े जो बैठे हैं वो भी नहीं रह सकेंगे, जो बिल्कुल ऊपर की लेवल बैठे हैं वो भी नहीं रह सकेंगे। इनमें बगावत आई तो बिल्कुल हालात खराब हो जाएंगे। अच्छा, हम देखते थे 47 से लेके अब तक, हम थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम लोगों ने पढ़ी है। माशाल्लाह मेरी उम्र भी 50 से अबव है। कुछ हालात वाक़यात देख रहे हैं कि 47 से लेके आज तक हमारे मुल्क के हालात ऐसे नहीं थे। खान साहब आए, खान साहब एक आदमी था, ठीक है जी, वो ईमानदार है या बेईमान है वो तो उसका अपनी ज़ात की हद तक रखे उसको। लेकिन है कि वो मुल्क के लिए कुछ सोच रहा था। अगर कुछ उसे पैसों की लालच होती तो वो जमाइमा को डाइवोर्स ना देता। सबसे बड़ा एक इशू ये भी है। क्रिकेट में भी उसके पास बहुत सारे पैसे थे, उसका नाम था, सब कुछ था। उसके खिलाफ हमारी ख़ास तौर पे ये जमातें, सियासी जमातें इकट्ठी हो गई, जिसकी वजह से अदम एतमाद आया। अदम एतमाद आने की वजह से अब तो एक एक्सपीरियंस याफ्ता सारी जमातें बहुत इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन अब भी वो मुल्क को नहीं संभाल पा रहे। सही बात। खान साहब चीज़ें सोचते हैं तो खान साहब को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसको खुदा ने इज़्ज़त भी दे दी है, पैसा भी दे दिया है, राश भी दे दी है, हर चीज़ उनके पास है। पैसों के लिए वो, हमारा जो दिल कह रहा है कि पैसों के लिए वो नहीं भागता होगा। हुँ? बकीरा ये तेरे तेरा जो लोग इकट्ठे हुए हैं ना, ये भले दूध से धो के साफ सुथरे आ जाए, मगर लोगों के जहन में एक चीज़ बैठ गई है, ये चोर है तो चोर ही है। हाँ? उनको भी कुछ करना है। अभी तक तो एक ये 6-8 महीने बैठे हैं, इसमें ऐसी कोई इनकी पोजीशन आई नहीं है कि जिसमें ये कुछ करे, हैं? दिन ब दिन हालात पहले से भी खराब हो रहे हैं। हम्म? देखिए, इसाक डार साहब थे, हम्म। यहाँ से भाग के पाकिस्तान छोड़ के चले गए। गए भी वज़ीर आज़म साहब के त्यारे पे थे, आए भी वज़ीर आज़म के त्यारे पे थे। सेनेटर थे, इतना सा पाकिस्तान में कोई काम नहीं किया, आके सारी तनख्वाहें ले ली, हमारे ऊपर बोझ। इन जैसे लोगों का क्या करें हम लोग? क्या हम ये टैक्स दे दे के इन लोगों को खिलाएंगे, हमारे ऊपर नहीं लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे? वाई?
सर देखो, एक तो ये सियासी नहीं, सवाल ये भी जो है ना, सियासी नहीं, हाँ ये हमारा अपना हाँ, ज़ाती सवाल है, ज़ाती सवाल है। ठीक है ना? ये सियासत में नहीं आता, सर पैसे ठीक तो है ना? आवाम के पैसे हैं, अवाम के, हमारे आवाम के पैसे हैं। पैसे हमारे हैं, पैसे आवाम के हैं, लूट रहे हैं, खा रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने पहले ही आपको ये कही है कि ये जो आवाम जो बिगड़ गई है, एक सारी चीज़ें जहन में आ रही हैं लोगों के, जो नीचे वाला लोग है ना, उनको भी अभी ये पता है कि इसहाक डार हमसे गया है, 4 साल वहाँ रहा है, उसकी आके सारी चीज़ें हमसे वापस ली हैं, ठीक है ना, इनको ज़रूरत भी नहीं थी लेने की, ठीक है ना, मगर ये निज़ाम ही ऐसा है। ऐसे इसहाक डार जैसे तो पता नहीं यहाँ कहाँ कितने कितने लोग हैं जो ले रहे हैं पैसे। शहबाज हाँ, शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पे नवाज शरीफ साहब की एक जमानत देते हैं, उस जमानत पे अब सफारती पासपोर्ट भी जारी हो गया है जो कि यहाँ से भागा हुआ है। ये हमारे मुल्क का सही हाल है, हमारा मुल्क किस डगर पे चल रहा हम है। जितना भी भौंकेंगे ना, जो करने वाले हैं वो करते रहते हैं, ठीक है ना, मगर ये भौंक जो है ना, भौंक आगे चल के चीख हो जाएगी एक। राइट। हाँ, जब ये चीख हो जाएगी ना, फिर ये पड़ाड़ा हो जाएगा। हाँ, पहले भौंक अपने आप तक होती है, चीख कमरे तक होती है। हाँ, पड़ाड़ा है ना, वो पूरी बना पूरी जगह फैल जाता है। हाँ, तो ये चीज़ें बढ़ के एक पड़ारा बन रही है, ये बहुत नुकसानदेह है, इनके लिए नुकसानदेह है, ठीक है ना। गरीब क्या करेगा, गरीब तो वैसे ही ख़त्म है। हाँ? उनको उनको क्या करना है, वो तो ख़त्म है। वो एक 500 रुपये कमाएंगे तब सुबह जाके खाना खाएंगे, एक दिन इनकी दिहाड़ी नहीं लगी तो दूसरे दिन उनके बच्चे बेरोज़गार बैठे होंगे। हैं, सो बस अल्लाह इनको साझा दे, ठीक है ना। ये जो जिस तरीके से खेल रहे हैं ना, ये इनको अभी इनको इस पोजीशन में नहीं खेलना चाहिए, इनको अल्लाह अल्लाह से तौबा करके अभी अपने गुनाह बख्श करना चाहिए। हैं, वरना इनको जो है ना, अभी हालात बहुत अब बुरे आने हैं बस। क्या कहें, अल्लाह हर को अपने ये नस्ल तो ईमान में पाकिस्तान के लिए रखें। नुकसानदेह है। ये मुल्क का ही नुकसान है, इन लोगों को क्या है। हाँ, अवाम जो है ना, हाँ, मैं पहले भी आपको यही कह रहा हूँ कि खुदारा इस मुल्क के लिए भी सोचो। हाँ, जो करना है कर दिया, ये हम बिल्कुल लाइफ लाइन पे चल रहे हैं, लास्ट लाइफ लाइन है हमारी। हाँ, नहीं सोचेंगे, ये जो पड़ारा बढ़ के एक अंगारा बन जाएगा ना, फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसका टेलर खाली खान साहब की लांग मारते देखो। हाँ, उसकी आवाम देखो उनके साथ है, ठीक है ना। खान साहब को तो उनने बिल्कुल नीचे किया है, ठीक है ना, तो खान साहब पहले से 100 गुना ज़्यादा ऊपर आ गया है। हाँ? अभी इलेक्शन की पोजीशन वाज़े है, सिंध में भी हालात हमें तो बिल्कुल चेंज नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग थे, उनका ये ज़हन था, अभी तो नीचे से ही हम सोच रहे हैं ना, लोगों के व्यूज़ ये लगे भाई इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया अभी हमारे लिए। हाँ, चीज़ें चेंज हो रही है, वक्त इंसान को बदलता है, ठीक है ना, मगर ये हमारे हुक्मरान नहीं वक्त के साथ बदल रहे हैं। वो पहले ही अपनी ऐशों में लगे हुए हैं। अच्छी होटलों में बाहर जाके रहना है, अच्छा सफ़र करना है। ए भाई, अब अपना स्टैंडर्ड आप देख रहे हो, आप स्टैंडर्ड उन लोगों से मिला रहे हो, तो वो अपनी आवाम के लिए जा रहे हैं, आवाम के लिए काम करे। आप कह रहे हो वहाँ भी हम अयाशियाँ करें, यहाँ भी अयाशियाँ करें, ये नामुमकिन चीज़ें हैं सर। लास्ट पे इस वक्त जो आपके मसाइल हैं, ख़ास तौर पे इंडस्ट्री के मसाइल, ज़मींदारा से भी आप लोग रिलेटेड हैं, ज़मींदारा के मसाइल और ख़ास तौर पे एक्सपोर्टर हजरात के मसाइल, आप एक्सपोर्ट भी करते हैं आप। ये एक छोटी सी एक लाइन में इनका जवाब मुझे चाहिए कि हमारी हुकूमत सिंध को, हुकूमत पाकिस्तान को क्या इक़दामात करने चाहिए कि ये आपके मसाइल जो है ना, ख़त्म तो नहीं हो सकते, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, लेकिन इसमें कुछ कमी पेशी हो नहीं, जाए। पहले यहाँ इशू है एक लाइट का, जी। लाइट है नहीं, ठीक है ना। ग्रोथ्स और इंडस्ट्री की क्यों में चलती रहती है, ठीक है ना। ये घर में जो दो लोग होते हैं ना, हाँ, तो ये चिक चिक चलती रहती है। अभी माशाल्लाह पेडी का रेट अच्छा है, हैं, सारी का रेट अच्छा है, ग्रोथ्स भी खुश है। अल्लाह की बड़ा करम फरमाए इस बेल्ट पे के यहाँ पे नुकसान हुआ है, कम हुआ है। हाँ, सलाब ज़दा। सैलाब का जो नुकसान यहाँ बिल्कुल कम हुआ है। पेडी का रेट अच्छा है, ग्रोथ्स भी खुश है, ठीक है ना। मिलर को भी रोज़ी अल्लाह देगा, ठीक है ना, अपनी मेहनत करेगा, ठीक है ना, बिजनेस इनका और भी बढ़ेगा, ठीक है ना, ग्रोथ्स भी खुश है, ठीक है ना। मसले मसाइल सिंध हुकूमत की तरफ से ये मैं कह रहा हूँ कि इदारे हैं तंग करते हैं, लाइट के इशू है, ठीक। ठीक है ना, वो चीज़ें सीधी हो जाए तो ऑटोमेटिक सीधी हो जाएंगी। टैक्स भी दे रहे हैं, हर चीज़ भी करे। एक्सपोर्टर का मामला है तो एक्सपोर्टर जो है वो भी अपनी जगह पे सही है।
उनको भी चावल यहाँ से भेज के बाहर भेजने हैं, नमी वाला चावल जाएगा वहाँ उनका भी नुकसान होगा। आगे आगे जो एक्सपोर्टर जो चीज़ें दे रही है वो भी एक इस चीज़ हो के पोर्ट से फिर चीज़ें जाती है, स्टैंडर्ड कंट्रोल उनका नहीं होगा उस चीज़ पे तो बाहर वाले हमसे कैसे माल लेंगे। राइट। हाँ, तो वो चीज़ें भी हमें सीधी करनी है, ठीक है ना? लाज़मी वो हम यहाँ से चीज़ें शुरू से बेईमानी शुरू कर दे तो वहाँ तो हम आखिर तक। करें, नीचे से चीज़ें सीधी होगी सारी। ज़मींदार अपने हिसाब से रेडियाँ करेंगे, पर कुछ हुकूमत के इदारों को जो एग्रीकल्चर है या वफाकी इदारे हैं, अच्छे बीज दें, अच्छी चीज़ें करें, जैसे ग्रोथ्स को भी कुछ फ़ायदा हो, खादों पे सब्सिडी दे, ठीक है ना? नवाज लाइट पे शरीफ साहब ने सब्सिडी ऐलान तो किया है, दे। इम्प्लीमेंट तो ऐलान नहीं हुआ। ऐलान ऐलान खाली ऐलान तो यहाँ तो ऐलान ही ऐलान होते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आती है, हैं? ऐलान करने में बस आके एक ऐलान ही करना होता है, हैं? इम्प्लीमेंट नीचे वाले करेंगे, हैं? और नीचे वाले को पुश यही करेंगे, मगर इस ज़्यादा हम नहीं कह सकते इन लोगों को, ठीक है ना? मगर कुछ ना कुछ सोचना चाहिए इन लोगों को, अपने मुल्क के लिए सोचें, अपनी आवाम के लिए सोचें, ग्रोड्स वजारत के लिए सोचें, व्यापारी लोगों के लिए सोचें, एक्सपोर्टर के लिए, जिसके लिए भी जिसका हिस्सा है उसके लिए उनको सोचना चाहिए, उसको उनको फैसिलिटेट करना चाहिए, तब जाके ये मुल्क आगे बढ़ेगा, ठीक है ना? अभी इस मुल्क में वो गुंजाइश नहीं है कि हम इसको लूटते रहें, खाते रहें बस। अब खून तो निचोड़ दिया इन लोगों ने, भाई पानी रह गया है और कोई चीज़ें हैं नहीं, बस क्या बोले, बस बहुत अल्लाह ही हो, शुक्रिया बस दास साहब मेहरबानी आपका सर। टाइम देने का। नाज़रीन, ये थे शीतल दास साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। ख़ासतौर पे बड़ी अच्छी बातें की इन्होंने, सारी तकरीबन जितने भी मसाइल थे इंडस्ट्री के हवाले से, इदारों के मुतल्लिक, लोड शेडिंग के मुतल्लिक, ज़मींदारा को रिलीफ देने के मुतल्लिक, सब्सिडी देने के मुतल्लिक, खादों पे खाद, यूरिया, ये सब चीज़ों पे, क्योंकि ग्रोथ होगी, बीज अच्छे होंगे तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। क्योंकि हमारा मुल्क जो है ना बेसिकली एक ज़रई मुल्क है। 75% हम ज़राअत पे डिपेंड करते हैं। अगर हम इस पे भी तवज्जो नहीं देंगे, इसलिए मैं हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान तो एक मसाइलिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये इंडस्ट्री के लोग हैं, इन पे थोड़ी सी तवज्जो दें, ज़राअत पे थोड़ी सी तवज्जो दें, ताकि हमारी जो माशी हालत गिरी हुई है वो थोड़ी सी संभले, ताकि हमारी जो महंगाई है, छोटे तबके के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको दो वक्त की रोटी मैसर नहीं है, ताकि वो आराम से दो वक्त की रोटी खा सके और चैन सुख की जो है ना नींद सो सके। अगर यही हालात रहे तो हमारा मुल्क खुदा ना खास्ता जैसे खान साहब फरमाते हैं जनाब के, श्रीलंका जैसे हालात पैदा ना हो। और अल्लाह ना करे, मैं दोबारा इस चीज़ को लेता हूँ कि हमारा मुल्क जो है ना एक सोने की चिड़िया, इसमें सारी चीज़ें हैं, दुनिया कायनात की अल्लाह पाक ने रखी हैं, और कलमे की निस्बत से ये मुल्क आया हुआ है। अल्लाह पाक इस पर रहम करे, अपनी बरकत नाज़िल फरमाए और हमारे मुल्क सही सलामत रखे, और हमारी हुकूमत, हमारे सियासतदान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को इस मुल्क की खातर जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनको देने की तौफीक अता फरमाए, और हमारा मुल्क जो है ना दिन रात तरक्की करे। कैमरामैन जवेद के साथ डॉक्टर नवीद, 73।